દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો.
દાદા ભગવાનના અસીમ જય 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 સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સતચિત આનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. પેલું જય ઘોષ જૈનોમાં બોલાવે છે ને, શું કે છે? જય ગંઠ દેરાસરમાં બોલાવે છે ને જયનાદ, જય ઘોષ કેવું કંઈક તમને લોકોને ખબર જ નથી? હે અમને ખબર, બીનાબેન ખબર છે, પણ એનો ઘોષ બોલાવે છે ને ઘંટ વગાડતા હોય. ચોથા આરામ બોલાવતા હતા, અહીંયા અમુક અમુક તો બોલાવે છે. એ દેવોના દૂધ પીવા ત્યાર પછી બોલાવે, એ મોટું બોલાવે. અરુણભાઈ સાહેબ થોડું આગળ લાવો, દેખાય એવા મને થોડુંક. બસ બસ, બહુ થઈ ગયું, બહુ થઈ ગયું. તમે થોડા આગળ આવી જાજો એટલે તમે પાછળ નહીં પડી જાઓ. ખરા વડીલાયા, શું નામ? મોટે મોટે બોલો બોલો, બેસીને બેસીને. જી ગોપીલાલ જૈન. અને બાજુમાં હે अच्छा, बहुत सुंदर. जसराज जी आए हैं? આવે છે? વસંતભાઈને ટાઈમ લાગશે જરાક, ભલે. જય સચ્ચિદાનંદ. ચાલો તારે આપણે આપણી વાતો કરીએ. શું કરીએ? આપણે આપણી વાતો કરીએ. વાતું વાતું. આપણે આપણી વાતું કરાય કે ના કરાય? કે ભગવાનની વાતો કરવાની? જો બોલે છે તો આપણે આપણી વાતો કરીએ, ભગવાનની કહેવાય કે આપણી કહેવાય? લે ભગવાન સાથેની. ભગવાનને કઈ નવરાશ છે વાતું કરવાની? મેં તો આપણી જોડે બોલે નહીં કે શું કરું? એ મારો ગુણ જ નથી બોલવાનો, તો કરું હું? આ ત્યારે ભગવાન જોડે રહીને આપણે આપણી એકબીજાની વાતો કરી લઈએ તો એકબીજાને ઓળખીએ કે ના ઓળખીએ? સાહેબ ખરું કે નહીં? એકબીજાને ઓળખીએ. આટલા બધા જુદા જુદા રૂપો સાથે લઈ અને આપણે ઓળખીએ એકબીજાને. કેટલા બધા રૂપો છે વડીલ, કોને રૂપ કેટલી જાતના છે? એમને નામ રાજ તમે વાત કરજો વચ્ચે ભાઈ. આપ બોલો, સુનાઈ નહીં દેતા, બોલો. रूप कितनी કેટલા જાતના છે? ગુજરાતીમાં બોલો ને. नहीं आती तो आज तो गड़बड़ हो जाएगी. हमारे गुजराती ज़्यादा है, क्या करूं? चलेगा? हाँ, आप लोगों को अलग अलग भाषा वाले को हमने हमारे पास बुलाया है. प्रकाश जी कहाँ गए? हाँ, तो आज शाम तक सबको संदेशा भेज देंगे. कहाँ गए प्रकाश? यहाँ आ जा. तू बोल, तू बोल कि आपको कितने फोन आए वगैरह बोल जोर से. यहाँ आ जाए. नहीं, એને બેસવા દો, ઉપર બેસશે તમારી જોડે. એલાવ કરજો ને એને. હે બસ બસ બસ. ના, આપણે જગ્યા નહીં બદલવાની. બોલવા પણ મને આ વખતે ઘણા ફોનો આવ્યા, લગભગ 100 ફોન સુધી આવ્યા છે આ પેપરમાં આવ્યા પછી. અને કેટલા? 100 ફોન દાદાજી. 100 ફોન આવ્યા. 100 ફોન અરુણભાઈ, આવ્યા છે. અરુણભાઈ 100 ફોન આવી ગયા. અરુણભાઈ તમારી ખુરશી અહીંયા મૂકો ને, શું વાંધો છે? આવો ને અહીંયા, તમે ઉચકીને લાવો. કઈ હરખી વાતો થાય અહીંયા અહીંયા અહીંયા. બસ બસ. પેલા બે ચાર પેલા એ લઈ જા, પાછળ લઈ જા. તમે રવા દો, તમે બેસી જાઓ, તમે બેસો, તમે બધું કરી દેશે. આમ અંદર લાવ. હા, તો કોઈ રોકાય નહીં. પેલા પાછલા રોકાઈ જશે કે ના?
હા કિતને બોલ કે શું કહે છે કે કાલે સાંજ સુધીમાં પેલો સત્સંગ આપણો થયો એ સત્સંગમાં અને આજે સવારે પેલા રિપોર્ટર આવ્યા હતા તેમને થોડો ફોટો લઈ ગયા જી દાદા અને આ સંઘ તરફથી આજના પેપરમાં અહીંયા હિન્દી પેપર છે ને એમાં આવ્યું હશે તે જોઈને બધાને બહુ આનંદ આવ્યો અને આનંદ આવ્યો એવા ઉભરાયા તે એકલા ગુજરાતીઓને જ આનંદ આવ્યો કે છે ના, ના, બહુ દાદા- ફોન આવ્યા કે છે કેટલા જણા આવ્યા 100 માં દાદાજી બધા જાતના છે, સિંધી છે, મુસલમાન છે, ધીમે ધીમે બોલો ને, મને નથી યાદ સિંધી, પંજાબી, ગુજરાતી અને આપણે મુસલમાનો બી થોડાક છે, અમુક સરદારજીઓ છે, અને ક્રિશ્ચન ક્રિશ્ચિયાનિટી અને વાળા, કેથોલિક કેથોલિક, અને પ્રોટેસ્ટ- સરદારજીઓ સરદારજીઓ. આ ભેગા આટલા બધા ફૂલ તો હવે આ બધાને ભેગા આપણે કરીએ તો ખોટું છે હા તો એમને અમે વિનંતી કરી કે અહીંયા આગળ અમે એમને વિનંતી કરી કે અહીંયા અહીં લઈ આવો ને અમને આ બધા ભેગા રહેવાનું મળે જી દાદા, 2 દાડા મળ્યા છે તો કંઈક જી દાદા. તો કે આજે બપોર લઈ આવીએ તમને હાજે 4 વાગે અમે ત્યાંની ઘરની ચા પીને અહીંયા બંધ કરીને ઘર કરીને કહે છે અમે આવી જઈશું ઘર બંધ કરીને એટલે બધા અહીંયા જ રહીશું કે છે મંજૂર છે બધાને અમને રહેવા દેશો કે નહીં હા દાદા. આવું બોલાતો એટલે પછી એમને કહ્યું અમે કે આવતીકાલે સત્સંગ તો ચાલશે 6 થી 8 નો જી દાદા, અને એક જગ્યા હશે તે ત્યાં આગળ બેસી જઈશું આપણે જી દાદા. એ લોકોને જુદી વાત કરીશું અને જો તમે બધા મંજૂર કરો તો કાલે થોડો હિન્દી ને ઇંગ્લિશમાં થોડી વાતો થઈ જાય તો થવા દેજો તમે એલાવ કરશો પણ હૈદરાબાદ વાળા ઇંગ્લિશ જાણે આ બહેનોય જાણે થોડું થોડું શું વાત કરો છો લે આ તો કાલે જ્ઞાન વિધિ છે પરમ દિવસે ભલે દાદાજી છે. નહીં પણ જ્ઞાન વિધિ 6 વાગે પતી જવાની છે એટલે મેં એમને શું કહ્યું કે 8 વાગે બોલાવો બધાને ભલે અને એ લોકો તો આવશે એ આવશે આવશે આ દાદાજી. લોકોને કહેશો તો જો એમને સમય હોય તો હા નહીં કહી દઈશ હમણાં દાદાજી, ફોનમાં કહી દઈશ, આવશે ચોક્કસ. એટલે બધા નક્કી કરજો જી 8 વાગે કાલે ના ફાવે તો પરમ દિવસ રાખજો નહીં કાલનું જ નક્કી કરી લેશું દાદાજી, હે કાલે નક્કી કરી લેશું દાદાજી. તો પરમ દિવસ નહીં તો રાખજો નહીં નહીં હમણાં નક્કી કરીને નિમેશાનંદ ના, એટલે બે રીતે કહું છું હા, બે તો રીતે પરમ દિવસે રાખો. ના તો અનુકૂળ ના આવે તો પરમ દિવસે રાખો જી. દિવસે બધા કામમાં જાય જી. તો સાંજના રાખજો જી દાદાજી, આ 3 વિકલ્પો છે આપણી પાસે જી દાદાજી. બરોબર બરોબર દાદાજી. તો પરમ દિવસનો 700 સત્સંગ એ બધા હાથે કરી લઈએ આપણે હા દાદાજી. આખા ભારતના બધા અહીંયા ભેગા થયા તો શું ખોટું છે સરસ સરસ દાદા ખોટું છે કરજો જી દાદા. પણ આ વિકલ્પ આપ્યા હા નહીં તો પકડીને રાખશું એક ના જગ્યાએ. ના ના દાદાજી, એવું સાહેબ કહે છે ના ના બરોબર. અને મને લાગે છે કાલ પરમ દિવસ હાથનું બધા અનુકૂળ પડશે હા જો આમ જુઓ જી હવે દાદાજી, સમજી જાઓ તમે જી દાદાજી. એ તો ધીમે રહીને કહે એટલે જલ્દી સમજાય નહીં ને આપણને એટલે પરમ દિવસનું જી દાદા. સાંજે 6 થી 8 જી દાદાજી. મંજૂર બધાય ને હા મંજૂર. જાઓ તારે એ જનરલ સत्संग બધાયનો હા, દાદા. અને राजस्थान के भी आ जाना सब हाँ राजस्थान के जैन वो आएंगे ना हिंदी में बात कर लेंगे જી દાદાજી. જસરાજ જી ને પણ હા બોલી બધા દેજો બોલાવી. જી દાદા. અને આપણે ગુજરાતીઓ બધા કેવા કહેવાઈએ ભારતીય કહેવાઈએ કે ના કહેવાઈએ પણ ગુજરાતી લોકો માને છે કે અમે ભારતીય છીએ તો આ બધા ભેગા થશે તો સમજે કે આપણે પહેલા સર્વप्रथम हम भारतीय है बिहारी आनंद जी ऐसा समझाते हैं हमें सबको बोलो ने दादाजी जय सच्चिदानंद ओ भारतीय સર્વપ્રથમ ભારતીય दादाजी whatever language you speak let somebody translate ओके if you are speaking in Gujarati many people cannot understand नो नो So, look here yeah we will do that if somebody can translate side by side it's okay हिंदी भारती हिंदी भारती बहन हाँ गुजराती हिंदी- नो हिंदी- गुजराती में बात कर रहे हैं तो अच्छा अगर गुजराती में हमारे से सत्संग हुआ हाँ। तो पैरेलल साथ साथ में हम हिंदी या इंग्लिश में बोले हिंदी में हिंदी और इंग्लिश एनीवन इज नो ओके हिंदी 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 इंग्लिश भी चलेगा
चले? Ah, English. और मंजूर, एक्सेप्टेड, Okay. एक्सेप्टेड। और परसों सब लोग आने दो, एंड्रॉइड को भी आने दो, हैदराबादी को भी आने दो, सबको, ठीक है ना? अब आपको फोन करना ચોક્કસ દાદાજી और सबका लिस्ट कराओ, कौन आते हैं हाँ, वगैरह, दादा, करी लेंगे। ऐसा करो। भारती बहन साथ में कौन आया है आज? और My brother's wife and daughter-in-laws, they are sitting at the back. अच्छा, सुभद्रा आई है? हाँ, सुभद्रा, ग्रीष्मा सब लोग आए। दोनों आए हैं सब, हाँ, सब लोग आए। ठीक है, पीछे बैठे भाई, ठीक है, मोटू फैमिली છે નો। और कितनी मजे की बात है, हम सब साथ में रहते हैं, साथ में। और भारती बहन बोलती है मैं भी उनके साथ रहती हूँ, भारती बहन ऐसे बोलते हैं, मैं भी। ये अपना भारतीय संस्कार है ने, અને ભારતના સંસ્કાર કહેવાય, जो हमसे अच्छा अमेरिका में है, ऐसा अरुण जी बोलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं बोलता। नहीं समझ आया, नहीं बोल सकता हूँ। मैं समझ में नहीं आया मेरे। ऐसा नहीं बोल सकता कि सबसे अच्छा अमेरिका अमेरिका में है। नहीं, अमेरिका में नहीं है, इसलिए तो यहाँ आया अभी। रहे अमेरिका में, रहे यहाँ आए। दादा ने बताया था कि पातली जिंदगी में वहां जाना होगा। देखो 1982 में वेरी फर्स्ट वीक वो मेरे घर तीसरे दिन से दादर से उतर रहे थे, और पैरन पैर के, और ऐसा हमारा दर्शन में ऐसा आता है कि अमेरिका का महात्मा की पातली जिंदगी सुरक्षित होगी। अमेरिका की महात्माओं की पीछे की जिंदगी यहाँ सुरक्षित रहेगी, सुरक्षित, वेल प्रोटेक्टेड। भारती बहन वो तो नाइजीरिया से आई है, हाँ, लेकिन वो तो आते जाते रहते हैं वहाँ। तो चलो हम सत्संग चालू करें। चलो करें। हाँ। किसको क्या पूछना है बोलो, पहला भाइयों में से पूछते हैं। आप ब्रदर्स, आप भी बात कर सकते हो। આજે કોઈને પેલો બેટરી વાળું બોલવાનું આપ્યું છે કોઈને? पीछे एक दे दो, एक बहन में एक आ बाजू रखो, एक आपका किसी को मत देना, नहीं तो हैरान हो जाएंगे। भारती बहन, आपके घर उसकी कॉपी करवा लो, ले जाओ। सुनती है? समझी? ये पद खास ले जाओ। और जो लोग स्कूल में पढ़ाई करवाते हैं, मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में, कहाँ भी, और कॉलेज में भी जो को लोग हो गए, ये पद खास करो। बिहारी आनंद जी, हम वो प्रकाश कहाँ गुम हो जाता है? દાદાજી એમાં એવું છે, જલાબેન ને મીનુબેન આવે છે, એ જરીક રસ્તો ભૂલ્યા છે, એટલે એમને ડિરેક્શન બતાવે। भले भले भले। तो वसंत भाई, उनके ज्येष्ठ भ्राता, उनकी इच्छा है कि कमला नेहरू पॉलिटेक्निक गर्ल्स कॉलेज, वहाँ ये पद खास जाना चाहिए। करीब 1400 लड़कियां हैं, खास जाना चाहिए सरयू बहन। और वहाँ बना दो कि जो आपके स्कूल में जो करते हो, 2500 बच्चे हैं, उससे ज्यादा है अभी तो। नो, वो सब जो आपने रखा है वो यहाँ रखो। वहाँ भी हिंदी चलती है, बोलो आप। हाँ, इतना तो करो, यहाँ आए हैं तो इतना होना ही चाहिए हमारा। होना ही चाहिए, हाँ, होना ही चाहिए। हाँ, बस बस। प्रदीपानंद जी क्यों बोलते नहीं आप? जोर से बोलो, आपका आवाज अच्छा है। नहीं, पर फिर से बोलते जाओ। मैंने बोले तो हमें आनंद आता है, हमें शक्ति मिलती है आपसे। बोलो, होना ही चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 100%, 101 नहीं। और 99 नहीं। नॉर्मालिटी इज द मोक्ष। नॉर्मालिटी।
ऐसा जैनों में बोलेंगे सम्यकता। अरे सम्यकता क्या, सम्यकता नॉर्मलिटी। नॉर्मल, देखो जैन शास्त्रों का शब्द दादा ने कितना अच्छा जताया। बहुत अच्छा बताया है। अरे क्या बात करते हो, अब तो शास्त्र के ज्ञानी हो। नहीं, शास्त्र के ज्ञानी नहीं है। तो बोलो, भारती बहन है आपके पास? दादा दादा बोलो भगवन बोलो दादा दादा बोलो भगवन बोलो। ओ दादा दादा बोलो भगवन बोलो ओ दादा दादा बोलो भगवन बोलो। अपने हृदय के किवाड़ खोलो अपने हृदय के दीवार खोलो। धर्मोपक्ष की दीवार तोड़ो धर्मोपक्ष की दीवार तोड़ो। परमात्मा से नाता जोड़ो परमात्मा से नाता जोड़ो। दादा दादा बोलो भगवन बोलो दादा दादा बोलो भगवन। दृष्टि बिंदु के अनुसार दृष्टि बिंदु के अनुसार सब ही धर्मों को आधार सब ही धर्मों को आधार। अपनी जगह पे सब है सच्चे अपनी जगह पर सब है सच्चे। उत्क्रांति के नियम से चलते क्रांति से नियम से चलते। रॉन्ग बिलीफ ब्लंडर्स को भेदो रॉन्ग बिलीफ ब्लंडर्स को भेदो। कौन है खुद वह दिल से सोचो कौन है खुद वह दिल से सोचो। अंतःस्थल के भीतर को खोदो अंतःस्थल के भीतर को खोदो। दादा दादा बोलो भगवन बोलो दादा दादा बोलो भगवन बोलो। ओ दादा दादा बोलो भगवन बोलो दादा दादा बोलो भगवन बोलो। जिससे कुछ भी नहीं अनजाना जिससे कुछ भी नहीं अनजाना। ज्ञानी पुरुष प्रगट शुद्धात्मा मोक्ष मिला दे चेतन आत्मा मोक्ष मिला दे चेतन आत्मा। स्वपरिणामी सत ज्ञानात्मा स्वपरिणामी सत ज्ञानात्मा। जिसका नहीं निकलता फोटो जिसका नहीं निकलता फोटो उसको दिखा दे दादा दोस्तों उसको दिखा दे दादा दोस्तों। केवल सत है सुख समझो तो केवल सत है सुख समझो तो। दादा दादा बोलो भगवन बोलो दादा दादा बोलो भगवन बोलो। ओ दादा दादा बोलो भगवन बोलो दादा दादा बोलो भगवन बोलो।
जगत के सुख दुख उदय के आधीन, पुद्गल सत्ता पर उपराधीन, अंतर सुख है सच्ची शांति, बूझक व्यवस्थित कर्म समाप्ति, व्यवस्थित कर्म समाधि, निर्विकल्प समाधि साधो, निर्विकल्प समाधि साधो, ज्ञाता पद में ज्ञेय को देखो, ज्ञाता पद में ज्ञेय को देखो, अपना आत्म सुख ही खोलो, अपना आत्म सुख ही खोलो। दादा दादा बोलो भगवान बोलो, दादा दादा बोलो भगवान बोलो, हो दादा दादा बोलो भगवान बोलो, दादा दादा भगवान ना सिम जय जयकार हो, दादा भगवान ना सिम जय जयकार हो, हो दादा भगवान ना सिम जय जयकार हो, दादा भगवान ना सिम जय जयकार हो, दादा भगवान ना सिम जय जयकार हो, हो दादा भगवान ना सिम जय जयकार हो, दादा भगवान ना सिम जय जयकार हो, हो दादा भगवान ना सिम जय जयकार हो, दादा भगवान ना सिम जय जयकार हो, दादा भगवान ना सिम जय जयकार हो, दादा सिम जय जयकार हो। जय सच्चिदानंद, જય સચ્ચિદાનંદ. ચાલો ત્યારે હવે આપણે આપણા બધાના હૃદય કે ના કબાટ ખોલીને ખુલ્લે મને વાત કરો. आप सब आपके हृदय के कमाड़ किवाड़ किवाड़ हृदय किवाड़ है, तो खुले नहीं है, तो हमें खोलनी है. भारतीय समझे? हाँ, तो आपके साथ में समझाओ भाई, समझे सब? हाँ, खुला करके चलो, खुला कर दो, सब बात करो. आप समझते हैं? वहां कहाँ देखते हैं? हमारे सामने देखो और उनको समझाना, सुनाई कम पड़े तो. चलो बात करो. सुरेश भाई साहब अमेरिका से आए हैं. वैसे तो इंडिया का है, बोलते मैं इंडिया का हूं, लेकिन अमेरिका तो घूमने गया था, वापस आ गया हूं, ऐसा कुछ बोलते हैं. ऐसी बात? पर घूमने गए तो 30-35 साल के तक रह पड़े वहां. 44 years. लो वहाँ घूमे तो इसलिए इधर बैठ सकते. તો સુરેશભાઈ પૂછે છે કે દાદા ભગવાને જે ભગવાનનું ખરેખરું સરનામું આપ્યું, दादा भगवान ने जो भगवान का सही एड्रेस दिया और अने करे छे कोण ते जगत ने क्रांति करीने आप्यू. कौन करता है, अर्थात कौन ये जगत को विश्व को चलाता है,
कौन हमें चलाता है? वो विश्व को अर्थात हमको क्रांति करके रिवॉल्यूशन कर दी एक कलयुग में। जगत ने अपार करुणा से दिया, कभी किसी काल में जो नहीं दिया जाता, ऐसा कौन करता है? जगत कौन चलाता है? हमें ये जीवन में कौन चलाता है? हम खुद जीते हैं या कोई 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 शक्ति से हम जीते हैं? वो सब दिखाया। तो ये कितना हमारे जीवन में होलिस्टिक है, भारती सुनते हैं, वो हम कैसे सबको समझावे, ऐसा पूछते हैं ये अरुण जी। ये सही क्वेश्चन है। आ प्रश्न बरोबर છે। હોલિસ્ટિક એટલે પવિત્ર નહીં, શું કહ્યું? હોલિસ્ટિક મહિના પાયસ नहीं। क्या समझे? भारती बोलते जा मेरे साथ। महीना पायस नहीं, होलिस्टिक महीना हम जो खुद है, खुद से हम जीवे। एक शरीर में जो शरीर जीता जाता है, उसका जीवन चला जाता है कि नहीं? शरीर का जीवन शरीर से चला जाता है या हम शरीर के जीवन को शरीर को चलाने वाले हैं? वो बताओ भारती। हम शरीर को नहीं चला रहे हैं। हाँ, तो और कोई चलाने वाला होना चाहिए, ये समझना है। और ये पूछते हैं, दादा भगवान ने ये समझाया और दिया जगत को। दिया महीना हर एक को अपने अंदर से कैसी होलिस्टिसिटी से, अर्थात खुद से, खुद के लिए जीना है। ये उसको होलिस्टिक बोलते हैं, होलिस्टिसिटी बोलते हैं। और होलिस्टिसिटी वाला हमेरा इंटरनली इंटीग्रेटेड, अंतर से, भावात्मकता से, कैसी? भावात्मक, मन वचन काया, एक तीनों की भावात्मकता से। नहीं समझे? समझे। हम कैसे जिए? जो बाहर की काया, मन वचन काया से एकता स्वरूप नहीं है। और ऐसा ये कलयुग में, ऐसा शरीर में, ऐसी भावात्मक एकता से जीना, वो दादा भगवान ने विज्ञान दिया, उसका साइंस दिया। कौन सा साइंस? जीवन जीने का, खुद को खुद के लिए, कि जिसके कारण सब दूसरे का साथ रह के उनका ऐसा अंतर के जीवन के वाइब्रेशंस सभी जगह जावे। वो किसी को बाहर भेजता नहीं है, वो कुदरतीपन से जाएगा, वाइब्रेशंस, आंदोलन जाएगा। समझे? क्यों? कि मानव शरीर एक सजीव, सजीव बोलते हैं हम, समझे? सजीव कई प्रकार के जो हमें न जानते हुए जो बाहर वाइब्रेशंस भेजते रहते हैं, उससे ये आज बारिश सही समय नहीं आ पाता। गर्मी जिस समय होनी है उससे अलग समय में, और नॉर्मल होनी है उससे ज्यादा, कभी कम, ऐसा बनता रहता है। वो फैक्ट्रियां कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं भेजती, लेकिन मनुष्य अपने जीवन से रात और दिन, और रात में खास करके, क्यों? कि निद्रा में वो कुछ उसका कुदरतीपन बना रहता है। उसका हाथ की बात नहीं है, लेकिन निद्रा काल ही मनुष्य के लिए इतना अगत्य का है। तभी वो कार्बन डाइऑक्साइड उससे छुटाई करता है हमेशा। कार्बन डाइऑक्साइड, इतना कार्बन डाइऑक्साइड कुदरत की इतनी अच्छी रचना है कि वो बाहर एटमॉस्फेयर में नहीं जाता। वो तो ये वृक्ष जो भी है, थोड़े बच्चे जो भी है, वो ले लेते हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा जाता है और वृक्ष कम हो गए हैं, इसलिए एक्सेस है तो वातावरण में जाता है। गर्मी होती है। अरुण भाई साहब, गर्मी होती है शायद। तो इको फ्रेंडली जीवन नहीं जाता। क्या बताया? बोलो। इको फ्रेंडली। अरे समझते हैं कि नहीं? इको फ्रेंडली महीना
कुदरत के दरबार में हमें कुदरत के अनुरूप जो जीना है, ऐसा जीवन नहीं जाता, उसको नॉन इको फ्रेंडली जीवन बताया। सूरज जी ऐसा है कुदरत के कायदा के विरुद्ध का। हम चाहते नहीं कोई कि हम कुदरत के कायदे के विरुद्ध चले, लेकिन ऐसा बन जाता है, कलयुग है। तो ये होलिस्टिसिटी है साहब। आपको क्या लगा? हाँ, पक्का हुई ने? कितनी टका हुई? तो अभी समझाना सबको। आप तो पुत्र समझाना सबको। और बोलो, और क्या पूछना है अरुण भाई? बोलो। नहीं दादा, जोर से। दादा अंबालाल दादा ऐसा बोल रहा था, हाँ, ये विज्ञान है। गुजराती में बोलो, कर दी सिंधी मारे एकलाई करवानो नहीं, દાદા વાત કરતા હતા કે આ વિજ્ઞાન છે, ધર્મ નથી. વિજ્ઞાનની ઢબે તમે સમજો તો તમે જાતે જ અનુભવ કરી શકશો કે છે. बिल्कुल। અને સાથે એટલું બોલ્યા કે સૌથી મોટો સાયન્ટિસ્ટ આ દુનિયામાં હોય તો તીર્થંકર છે. તીર્થંકર ઇઝ ધી હાઈએસ્ટ ઓર્ડર ઓફ સાયન્ટિસ્ટ who can see કાળ. Except Tirthankar, no one can see Kal, time. No one can, not even a scientist, today's scientist. One scientist from गुजराती गुजराती NASA માંથી એક સાયન્ટિસ્ટ આવેલો, नासा अमेरिका की संस्था है, સાઉથ जो ઇન્ડિયન ના सबको चंद्र पर भेजती है। वो पृथ्वी के बाहर के वातावरण में लैब चलावता था. તે એને પૂછ્યું દાદાને કે 50 વર્ષ પહેલાં ટીવી નહોતો અને સેકન્ડમાં આપણે માપતા હતા, અત્યારે બિલિયન્થ ઓફ એ સેકન્ડ માપીએ છીએ. તો કે તમે કઈ રીતે કહી શકો છો કે માણસ માપી નહીં શકે? તો કે દાદા કે હંમેશા માણસનો સ્કેલ કેવો છે કે યુનિટ સ્કેલ છે. પહેલાં ફૂટપટ્ટી હતી કે છે, પછી આ સ્કેલ થયો. જેમ જેમ જાણતો થયો એમ ફ્રીક્વન્સીનો સ્કેલ આવ્યો. દાદા કે આ ટાઈમ તીર્થંકર જુએ છે એ એક સમય જુએ છે, એને સમય એક પરમાણુ પોતાને સર્કલ મારે, દેટ ઇઝ ધ સ્મોલેસ્ટ યુનિટ ઓફ ટાઈમ, એસા બોલા. તો કે આ જે સાયન્ટિસ્ટો એટમને બધું તોડવાની વાત કરે છે, એ તો કે ગ્રોસ છે કે છે. એટલું ઝીણું તીર્થંકરનું આ જ્ઞાન છે. સાહેબ શું કહે છે અરુણભાઈ સાહેબ કે મોટા દાદા અંબાલાલ દાદા બોલ્યા એટલે દાદા ભગવાન જ કહેવાય. આ તો ખાલી આમ તો નામથી કહ્યું તો પણ એ અનામી છે. નામ હોય તો જ પોતે અનામીનો પોતાનું સમજ આવે, નહીં તો ના આવે. નામ સાથે પોતે અનામી. હા, નામ સાથે પોતે અનામી, બરાબર. આ તો લોકોને થોડો ખ્યાલ કરવો પડે. એટલે દાદા ભગવાન એ समझाયું कि धर्म सारा विश्व में भारत में सब चल रहा है कि हम ये धर्म के हैं, हम ये धर्म पाते, उनको मानते, ये करते, वगैरह वगैरह वगैरह. तो वो धर्म धर्म है, लेकिन लोक भाषा में, वर्ल्ड लैंग्वेज में वो धर्म है, बराबर. और कंट्री की भाषा में धर्म है. जो व्यक्ति धर्म समझा रही है वो लोक भाषा में समझा रही है, लोगों के लिए, लौकिक धर्म, जिससे लोगों का जीवन जितना वो उसकी समझ में आवे, क्या समझ में आवे, और जितना उसके एक्सेप्ट हो जाए, उसका हृदय कबूल करे, उतना उसको फायदा हुए. और जो धर्म समझाने वाला है उसको जितना फायदा हुआ वहां तक उसकी लिमिट मर्यादा है. वो अमर्याद नहीं है धर्म जो विश्व में चलता है, लोक में चलता है. भारती बहन सुनती है? सुन रहे हैं. हाँ, सुन रहे. मैं जल्दी बोल जाता हूँ कि आहिस्ते बोलूं? ठीक से बोल रहे हैं दादाजी. आहिस्ते आहिस्ते ठीक बोल. ठीक है ना? तो यही बात रही कि धर्म हमेशा सारा भारत में बिना अपवाद, विदाउट एक्सेप्शन,
डूअरशिप से है कि मैं धर्म समझता हूं, मैं धर्म के हिसाब से जीवन जीता हूं और धर्म में मेरा जो क्रियाएं हैं वो धार्मिक क्रियाएं मैं करता हूं। ठीक बात है। इसीलिए बताया कि लौकिक धर्म जो चल रहा है सारा सभी जगह बिना अपवाद वो कर्ता भाव से है। मैं धर्म करता हूं, हम धर्म करते हैं और सब धर्म करते हैं, वो भी धर्म करते हैं। करोमि करोसि करोति, आई डूअर, वी डूअर एंड दे डूअर, आई वी एंड दे। उसमें सारा विश्व भारती बहन आ गया कि नहीं? आ गया। और भारत आ गया कि नहीं? भारत भी आ गया उसमें। तो बस तो गलत नहीं है वो, लेकिन सही ढंग से समझना है विज्ञान से कि ऐसा है। उसको कोई किसी की बाबत को, सारा विश्व में जो चल रहा है, किसी की बाबत को, किसी भी चीज को, किसी को भी कोई गलत बोल ही नहीं सकता, कभी भी नहीं। समझे? ऐसा है, ऐसे समझ में मेरे आया। तो अगर गलत हम बोल ही नहीं सकते और गलत दिखाई देता है, सारा गलत गलत वाला ही सब जीवन है सब जगह, तो क्या? तो नहीं उसको समझ, वो अंदर समझ में आया और लगता है कि गलत हो ही नहीं सकता कोई, तो उसकी एक अगर प्रोग्रेस हो रही है इन फ्रॉम इनसाइड, वो ऊर्ध्व तरल लाइट सर की प्रोग्रेस हो रही है उसकी अंडरस्टैंडिंग में कि तो पीछे गलत नहीं है, ऐसी कुछ चीज होनी चाहिए, है कि नहीं? किसी चीज को हम गलत नहीं बता सकते, किसी को भी गलत नहीं बता सकते, तो गलत नहीं है ऐसी कोई चीज होनी चाहिए, कोई भी होना चाहिए, और हमें भी हमारा जीवन में होना चाहिए। ऐसी नहीं बात, गलत की बात है, ये तो सादी समझ की बात है, उसमें कहाँ बड़ा आया शास्त्र की बात। हर एक को जीना है अपने शरीर से, ठीक है कि नहीं? कोई बोलता ही नहीं। ठीक है। हाँ, जो एक चाय भाई नहीं पिया आज लोगों ने? प्रकाश चाय नहीं, चाय नाश्ता। भारती बहन अपने चाय पीते कि नहीं? हाँ, पिए दादाजी। ऐसी बात है। ये रिसर्च सेंटर सूरत में जो चल रहा है सारा भारत के लिए, उनका संस्था का नाम है वितराग विज्ञान चैरिटेबल रिसर्च फाउंडेशन। एक एक शब्द का महत्व है और गंभीर डीप मीनिंग है, गुढ़ार्थ है। वितराग शब्द का गुढ़ार्थ सारा भारत के लिए और सारा विश्व के लिए समझाया जाए, ऐसा है होलिस्टिसिटी से। विज्ञान शब्द आज के विज्ञान के, भौतिक विज्ञान के युग में सही ढंग से सबको, क्योंकि सारी विजन रिलेटिव एक्सपांड हुई है, इंटेलेक्ट डेवलप हो गई है, ईगो पावरफुल हुआ है, और समझने के लिए कि कॉन्शियसनेस है वो भी बहुत गति वाली हो गई है, गति वाली हो गई है। हाँ? और इंटेलेक्ट तो खुद की है ही, वो किसी को उससे डाइवर्स लेने की दिल ही नहीं होता। ऐसा होता है, इंटेलेक्ट से डाइवर्स ले तो खलास हो गए हम। ऐसा कैसा चलता है? नहीं, इंटेलेक्ट से डाइवर्स लेने से क्यों ऐसा होता दादा? आप तो समझ गई है? तो धर्म डूअरशिप से, कर्तापन से है, इसीलिए वो धर्म है, लौकिक धर्म है। और अधर्म, धर्म वाले जिसको बोलते हैं कि अधर्मी है, अधर्म है, वो भगवान में नहीं मानता, ईश्वर में नहीं मानता, इसीलिए वो धर्मी है, नास्तिक है वगैरह वगैरह। तो उसको बोलते हैं वो अधर्म भी है,
वो भी डूअरशिप से है और कर्तापन से है, क्योंकि उनकी मान्यता कर्तापन से है। क्या बताया? कर्तापन से है। मान्यता कर्तापन से है भारती। बिलीफ, मान्यता। हाँ, इसलिए बिलीफ की महत्व है। कुछ समझ में आता है? बोलो। मान्यता कर्तापन से है। हाँ, कर्तापन हो नहीं होता तो मान्यता तो होती नहीं ऐसी, जो जैसी है वैसे रहती। पर कहाँ है, कहाँ है बताओ? तो एक विज्ञान है, साइंस है, वो ही मान्यता को सही ढंग से रखेगी। भारती बहन समझी? या हाँ, विज्ञानता। विज्ञान तो कल आपको हमने बताया था कि बिलीफ मान्यता के स्तर पर मानवी का, मनुष्य का, भाई हो बहन हो कोई भी, दोनों का इक्वल राइट वाले हैं अंडरस्टैंडिंग की बाबत में। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी समझ आगे वो क्या बोलते हैं Expand हिंदी होती में, है। क्या बोले, विकास होती जाएंगी। विकास। जैसी बड है फ्लावर की तो खुलता है, तो बोलता खुलता है रोज। समझ में आया? या ऐसी बात है। अंडरस्टैंडिंग, राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट एटीट्यूड, राइट राइट अंडरस्टैंडिंग। बिलीफ। इसीलिए साइंस अंडरस्टैंडिंग बेस ऊपर होता है। क्या बताया? अंडरस्टैंडिंग बेस के पर बेस होता के है, ऊपर। समझ की बेस पर होता है। समझ और के। इसीलिए समझ के base। हमें अगर लिबरेटेड स्टेट ऑफ लिविंग ये ह्यूमन बॉडी के साथ जीना है तो वो अंडरस्टैंडिंग के बेस पर हमारी प्रगति होती जाएगी। और जी सकता है। और प्रगति होती तो राइट अंडरस्टैंडिंग का संजोग इकट्ठे होते जाएंगे और उसके निमित्त अर्थात जिससे हमें राइट अंडरस्टैंडिंग प्राप्त हो जाए, ऐसा मिल जाएगी आपको। भारती बहन समझी? हाँ, समझे। हमें किसी को पर्टिकुलर को ढूंढने नहीं जाना है। आपकी अंदर की खोज जो ढूंढते हैं वही संजोगों को इकट्ठा करेगी। समझ में आया? समझ में राइट संजोगों बोलता हूं मैं। संजोगों मीन्स सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, बट सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस जिसको वैज्ञानिक संयोगिक पुरावा स्वरूप बोलते हैं, तो सारा जीवन मनुष्य का ये वैज्ञानिक संयोगिक पुरावा स्वरूप है। भारती जी समझ में आया? नहीं दादाजी, है? नहीं। वैज्ञानिक तो समझ में आया कि नहीं? हाँ, वैज्ञानिक समझ में। संयोगिक समझ में आया कि नहीं? संयोगिक में संयोग से, संयोजन से सब Circumstantial इकट्ठे होने होता है। वाला। Circumstance। अगर विचार आता है मन में तो कितने संयोग होते हैं तभी विचार आता है। हमेरा किया गया विचार कभी नहीं आता। लोग मानते हैं हम विचार करते हैं तो होता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ तो सब पजल रहा है। सबसे बड़ा ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा पजल है मनुष्य का। भारती जी समझी? दैट इज विचार आना कैसा आता, वो सबसे बड़ा पजल है। आप ऐसा हाँ, लेकिन वो पजल बताया ना दादा भगवान ने। साइंटिफिक अगर खुद से विचार आता, खुद से विचार आता, समझे ने, तो कोई भी खुद से दुखी होने की विचार आएगा ही नहीं। किसी को आएगा साहब? नहीं आएगा। कि मैं दुखी हो जाऊं ऐसा मुझे विचार आवे। वो मारने वाला है, किल करने वाला है, वो हम जानते हैं कि उसका विचार कैसा है। ऐसा उसको दुख लेने, मैं दुखी हूं इसलिए मैं मारता हूं, ऐसा नहीं बोलेगा। बोलो। और जो मरता है उसको बोले अरे कैसा है, कैसे ऐसा करता है, तो वो भी दुखी है लेके मरता है, ऐसा नहीं मेरा सुख चला गया, मेरा जीवन का सुख चला गया, चला गया। और किसने? उसने छीन लिया। भारती बहन समझती है? इसीलिए तीर्थंकर भगवान की अरुण भाई ने बात बताई। तीर्थंकर महीना जो बन रहा है मनुष्य के जीवन में, जो भी बन रहा है, दोनों पक्षों तरफ से सिक्के की दो बाजू है, टू साइड्स ऑफ ए कॉइन। वो तीर्थंकर की नजर में जो ओरिजिनल एब्सोल्यूट साइंटिस्ट है, क्या बताया? ओरिजिनल एब्सोल्यूट साइंटिस्ट। उनकी नजरों में वो किसी के पक्ष के नहीं है। वो जो जैसा है वो देखते हैं कि ये जो सही है वो सही देखते हैं, और वो गलत है वो गलत, सही नहीं, ऐसा वो दोनों तरफ से देखते हैं। लेकिन जो राइट है, गुड है, वो गुड का उसको
अभिप्राय को क्या बोलते हैं? ओपिनियन। ओपिनियन नहीं है, और वो बैड है, एविल है, उसका ओपिनियन नहीं है। अभी समझी? हाँ समझे दादा। इसीलिए उनको वितराग बताया और उनका साइंस बताया, विज्ञान महीना। और चैरिटेबल महीना, चैरिटेबल में तो गिव और टेक होता है। यस। जिसके पास है वो देता है, जिसके पास नहीं है वो लेता है। लेकिन ये चैरिटेबल ऐसा नहीं है, गिव टेक का वो नहीं है। जहां गिव और टेक का फंक्शन ही नहीं है, वहां वो संस्था में, ऐसे संस्था के फाउंडेशन बोलते हैं उसको, जो जीवन और जीवन जीने का जो सिद्धांत है मूलभूत, अंदर से सुखी होने का, अंदर से शांत जीवन जीने का, उसको फाउंडेशन बोलते हैं। तो चैरिटेबल जहां गिव टेक नहीं है, खाली अंडरस्टैंडिंग का गिव टेक होता है। क्या भारती जी बताया? अंडरस्टैंडिंग का गिव एंड टेक होता तो है। वो चैरिटी बताया और वो फाउंडेशन बताया। हाँ, ये बात है। और अमेरिका में ऐसा ही रिसर्च का फाउंडेशन है, वहां होलिस्टिक साइंस चैरिटेबल रिसर्च फाउंडेशन है वहां टेनेसी में, जहां सर्वप्रथम हिरोशिमा और नागासाकी का 2 बम, हिरोशिमा का सर्वप्रथम वहां बना था। समझी भारती बहन? या और वहां ये साइंस आज पीस बॉम्ब से सारा एक्सप्लोजन ऑलरेडी चालू हो गया है और सारा पीस की आंदोलन वाइब्रेशंस भेजता रहता है। समझ में आया? वैसा आपके वहां नाइजीरिया में भी आने वाला है। अब तैयार है कि नहीं? हाँ, उधर नहीं। हाँ? उधर नहीं आए। हाँ तैयार है। ऐसा धीमे मत बोलो, जोर से बोलो। आने वाला है। बोला सबको तैयार करो वहां। या सब जगह जाएगा, सब जगह जाएगा। इसीलिए हमारे अंदर डिवाइन विजन में हमें दिखाई दिया कि साउथ में जाना बना नहीं, ये 4 स्टेट बड़े कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे। अगर साइंस समझ जाए तो ये बहुत प्रोग्रेस करने वाले हैं, बहुत प्रोग्रेस करने वाले हैं। भारती बहन समझी? समझे दादा। ये आपका आंध्र को नाग लोग बोलते थे, तू जानती है? क्या बोलते हैं? नाग, नाग लोग, नाग लोग। अच्छा, नाग लोग। हाँ, फनी। या हाँ, लेकिन नाग लोग एविल नहीं है, समझी? लोग उनको एविल बोलते हैं। एविल, इविल और Evil, हाँ। इविल। ओके। इविल बोल रहे हैं। इविल, चलो ना। अच्छा, Evil है, नाग लोग नाग- is not evil, but हाँ, ये बात है। but everybody is afraid of snakes. नो नो, नाग लोग गुड है, लेकिन वो उनकी गुडनेस समझते नहीं, इसीलिए ये लोग क्या है, वो सबको डराने वाले लोग उनसे डरते हैं। क्या करें? बिहारी जी बोलो ने। डराने वाले लोग उनसे हाँ, Dadaji, that is related to, snake is related to Kundalini also, which is there in the spine. related to what? To the कुंडली spine, Kundalini. No, 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 no. Kundalini is totally different. Okay. Totally, Kundalini relates to body living, mind you, Okay. so that inner body becomes very strong. तो समझिए आप, Yes. इनर बॉडी की वैल्यू है। ये बाहर का शरीर खोखा है, वो क्या बोलते, कार्टन के क्या, कार्टन बॉक्स। कार्टन है वो तो बाहर का, तो अंदर अंदर का जो शरीर का भाग है वो सही मटेरियल है, समझिए? So और उसमें Kundalini makes the inside ना इनसाइड स्ट्रांग, strong. इनसाइड जितना स्ट्रांग हुआ इतना संसार और स्ट्रांग हो गया। Inside strong in what sense, Dadaji? संसार स्ट्रांग हो गया। Samsar means worldly इनसाइड वीक हो relations. गया तो संसार वीक हो गया। इसीलिए तो लोक में धर्म चलता है। संसार वीक हो गया, मुझे समझ में नहीं आया ये। संसार स्ट्रांग हो गया। She is asking what is mean by inside weak and what is mean by sansar. Inside weak and inside संसार strong. इनसाइड से जिया जाता है, बाहर से, शरीर से नहीं। वो लोग जानते नहीं, इसीलिए कुंडली ये सब सिखाते हैं। वो लोग मान लेते हैं, अच्छा करो भाई, ऐसी नहीं है। वो रिलेटिवली सच्चा है। क्या बताया? रिलेटिवली सच्चा है। रियली नहीं सच्चा, बाय फैक्ट।
नो, बाय रिलेटिव फैक्ट यस। समझे कि नहीं? तो धर्म कभी भी गलत नहीं होता, कभी भी, पर सच्चा है लेकिन बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से सच्चा है। क्या बताया? By relative viewpoint, बाय it is, रिलेटिव true. फैक्ट। By relative facts. रिलेटिव फैक्ट कभी भी मिथ्या नहीं हो पाती, कभी भी नहीं, क्योंकि सबको अनुभव में आता है, Correct. कभी भी नहीं होती। रिलेटिव फैक्ट मिथ्या नहीं होती, वो फैक्ट है, लेकिन रिलेटिव फैक्ट है। इसीलिए मनुष्य को जानना जरूरी है कि रियल फैक्ट क्या है मनुष्य के लिए जो जी रहा है। क्या रियल फैक्ट है? क्या मैं रियल हूं? वो सोच लगेगी उसकी। समझ में आया? भाई लोग आप सुनते हैं? हाँ, फनी जी Pani नहीं, आए? Pani का wife आई, सुभद्रा Subhadra and Grishma are तो there. उन्होंने सुना? पूछो। Subhadra, सुभद्रा आपने यो लिसन करती है? understand? हाँ, जोर से बोलने। वो पीछे बैठी है दादाजी। अच्छा कोई बात नहीं, चलो ऐसी बात है साहब। ठीक है। तो विज्ञान साइंस साइंस है। हाँ। तीर्थंकर शब्द बहुत पवित्र है। तीर्थंकर का मतलब वो शरीर मनुष्य का सारा वर्ल्ड में यूनिक एंड यूनिलेटरल, Unique. जिसकी कोई कॉपी होती ही नहीं, कभी भी नहीं हो सकती। क्या बताया? कभी भी कॉपी नहीं हो सकती। कॉपी जो प्रिंटेड है उसकी हो सकती है और किसी की नहीं। हमने निमेशानंद जी समझाया तो मेरी समझ में आया। प्रिंटेड हो तो कॉपी करेंगे ना भाई। ठीक है। हाँ, तो कार्बन भी नहीं रखा जाता उसका। वो तो सीधा दादा भगवान क्या बताते हैं? हम भगवान नहीं है, लेकिन हमारे 14 लोक का नाथ हमारे अंदर जो व्यक्त हो गया है, व्यक्त, और जहां भगवान व्यक्त हुआ उसी को ही व्यक्ति बोला जाता है, व्यक्ति, और उसी को ही पर्सन बोला जाता है। क्या? पर्सन कभी भी मेल भी नहीं होता और फीमेल भी नहीं होता, लेकिन दुनिया की भाषा में पर्सन होते हैं। ऐसा होता है। होता है। तो तीर्थंकर भगवान शब्द बहुत महत्व का है। यूनिक, यूनिक, द होल वर्ल्ड एंड होल ऑफ इंडिया, दैट कैन नेवर बी कॉपी ऑफ इट और ड्यूअलिटी ऑफ इट, नो। बिकॉज एक ऐसा मनुष्य इतनी चरम सीमा पर, जो महादेव जी की सीमा है, वहां शरीर के मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल से बिल्कुल अलग हो गया है, एब्सोल्युटली अलग, और खुद अपने खुद से अंदर अलग हो गया है, एब्सोल्युटली, और शरीर भी एब्सोल्युटली उनसे मुक्त होते होते एब्सोल्यूट शरीर हो गया। शरीर बाय रिलेटिव फैक्ट एब्सोल्यूट हो गया और खुद बाय रियल फैक्ट एब्सोल्यूट हो गए। आत्मा परमात्मा हुआ। परमात्मा महीना वो आत्मा से अलग नहीं है, लेकिन आत्मा की चरम दशा है। परमात्मा, उसके आगे कुछ है ही नहीं। ये तीर्थंकर शब्द है। और ऐसा शरीर एब्सोल्यूट, व्यवहार से एब्सोल्यूट, जहां जहां जाता है तो व्यवहार की सारी नॉन एब्सोल्यूटनेस खुद की एब्सोल्यूट के संबंध में विज्ञान से समझ में आती है। एब्सोल्यूट एंड नॉन एब्सोल्यूट आर टुगेदर। Yes. भारती समझती है? Yeah, समझ रहे हैं दादा। नॉन एब्सोल्यूट रिलेटिव है, Yeah. टेम्पररी है, और एब्सोल्यूट रियल है, परमानेंट, परपेचुअल है। समझ में आया? समझ में तो आया। नॉन एब्सोल्यूट वो रिलेटिव है, वो भी फैक्ट है, पर नॉन एब्सोल्यूट बताया, अभी एब्सोल्यूट हो गया वो। क्यों? कि उनके अंदर से, उनके शरीर के मन से, वाचा से और काया से सारा जो इम्प्योरिटी थी वो 100% निकल गई और नेचुरल हो गई, 100% नेचुरल। समझ में आया? समझ में तो आया। ह्यूमन बीइंग कैन अचीव दिस स्टेट। वो तीर्थंकर भगवान ने बताया। Okay. ऐसा नहीं है मैं हूं, मैं भी आपके सर का
ह्यूमन बॉडी से हूं, आप भी ह्यूमन बॉडी से हैं, आप समझ लो ये बात। अभी समझी? या चलो समझे એક પદ બોલો પેલો આપતા પુત્ર બોલાવતા હતા ને, પેલો પુલ તૂટ્યો નથી, हाँ? गुजराती में है ना दादाजी, वो गुजराती में। हिंदी में नहीं है तो करवाओ नहीं उसको। चलो गुजराती में बोलो, कराएंगे हिंदी में, कराएंगे जरूर। जरूर। जाओ, ये आपकी जिम्मेदारी। हाँ। आपका कविराज सुनते हैं सबका सुनते हैं। છે भारती बहन एक पद बोले, हाँ बोले, बड़ा अच्छा है कि गुजराती में, लेकिन समझ में आ पाए ना। हाँ समझा सकते हैं दादाजी। कई किसी के काम जो है, सानू से के किसी के काम जो हाँ, लो 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 चलो हिंदी का लो तो साहब को दो एक, आपके पास नहीं है? नहीं, अच्छा बस तो रखो, अच्छा है, बोल सकेंगे, हिंदी में है। चलो देखो ह्यूमन वैल्यू कितनी अच्छी है, हमें समझना है, ये पद में आता है। सब बोलना जोर से। हाँ, यहाँ अपना हॉल है, हरकत नहीं है, बोलना। एयरपोर्ट नहीं है, सिक्योरिटी के अरेंजमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, बोलो। अरुण भाई आप भी बोलो जोर से। जोर से बोलेंगे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। किसी के काम जो आए, किसी कोई काम जोड़ाए, उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए, उसे हम याद करते हैं। उसे हम याद करते हैं। किसी को दुख देता है, किसी को दुख देता है, तो खुद को दुख होता है। तो खुद को दुख होता है। किसी को सुख देता है, किसी को सुख देता है, तो जीव को सुख मिलता है। तो जीव को सुख मिलता है। जो करनी है वही भरनी, जो करनी है वही भरनी, उसी को कर्म कहते हैं। उसी को कर्म कहते हैं। कोई धनवान होता है, कोई धनवान होता है, कोई इंसान निर्धन है। कोई इंसान निर्धन है। कभी सुख है कभी दुख है, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में न घबराए, जो मुश्किल में न घबराए, उसे
इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। यह दुनिया एक उलझन है, ये दुनिया एक उलझन है। कहीं धोखा कहीं ठोकर, कहीं धोखा कहीं धोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई हंस हंस के जीता है। कोई जीता है रो रो कर, कोई जीता है रो रो कर। जो गिर कर फिर संभल जाए, जो गिर कर फिर संभल जाए, उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। उसे हम याद करते हैं। उसे हम याद करते हैं। अकेले ही जो खा खा कर, अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं। सदा गुजरान करते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। पशु भी पेट भरते हैं। पथिक जो बाँट कर खाए, पथिक जो बाँट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। करुणा के असीम सागर, करुणा के असीम सागर, स्वयं भगवान होते हैं। स्वयं भगवान होते हैं। जो भर ले ज्ञान की गागर, जो भर ले ज्ञान की गागर, जगत से पार होते हैं। जगत से पार होते हैं। जो सब में देख ले भगवान, जो सब में देख ले भगवान, उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। प्रगट दादा
દાખી આત્મ જ્યોત પ્રગટ દાખી આત્મ જ્યોત યુગો કો રોશની દેગી युगो को रोशनी देगी जगत में मोक्ष अनुभूति जगत में मोक्ष अनुभूति अहो मुक्ति શરૂઆતમાં તો બહુ બોલતા હતા, પુષ્કળ ઘણા વર્ષો ચાલ્યું. અદ્ભુત એ દ્રશ્ય થતું હતું દાદા. આરતીની સમજ જ્યારે મારા સંકલનમાં આવી ને કવિરાજનામાં, તો આ એકાદ ડીવીડીમાં આવશે એનું. મેં તો આ કેટલું બધું આટલા વર્ષો પછી આપણને એની ગમ પડશે અને ઉપયોગ એ રીતે ગોઠવાશે. અરે પોતે ઉપયોગ તમે ધીમે ધીમે સહજ થઈ જશે. એ તો કહું સહજ છું. થઈ જશે. આ પદની કવિરાજ કોઈ પણ પદ બોલો હા. સહજ થાય. કવિરાજ કહે છે ને મારી ગોજ્યું નહીં નીકળે નહીં આ. પણ તે વખત એમનો ઉપયોગ હોય તાર નહીં તો નીકળે નહીં. આ બધું બિલ્ડિંગ ના થાય. પણ પછી કે સ્ટેબિલિટી જોઈએ, સ્ટેબિલિટી. અમને આ રીતે ઓળખે. પણ હવે તો આ બધો વ્યવહાર હું છે ને પૂછે આ કાળનો એટલે અંદરથી જાણે સાહેબ કેટલું બધું શરૂમાં એક વખત પહેલી વખત હું લંડન રહી ગયો હતો એમને 96માં. તે વખત અમે ક્રિસમસમાં ગયેલા અને પેલો ભૂપેન્દ્ર સાન ફ્રાન્સિસ્કો એને બોલાયેલા મને અને 2 જણા આવ્યા હતા અમેરિકાથી. એની સિસ્ટર રહે એને ત્યાં ઉતારો આવ્યો. એનો બધો ભાવ હતો બરોબર. મને લાગે છે 21 કે 22મી 21મી નક્કી 22 કે 23મી 25મી ક્રિસમસ. કનુભાઈ તો એ 96માં પહેલી વખત ગયેલા અને 25મી એ જ સવારે ઉઠતા તો સવારે ખોરા પડી ગયા હતા અને આને ત્યાં પેલું પાછળ યાદ હોય ને બેકયાર્ડ તો ખોરાક બધું દોડ દોડ થઈ ગયું અને કનુભાઈ ખુશ થઈ ગયો અને કવિરાજ મેં ઉઠે કવિરાજ જુઓ જુઓ હતો ધોરો વરસાદ પડ્યો. હવે નીચે ઉતરીને કવિરાજ વાકે લઈ ગયો બે ખ્યાલમાં. અમે 96ની વાત કરું. પછી મારે દિવાળીના સમય કહેવામાં નાઇજીરિયા જવાનું છે. પહેલી વખતે અમેરિકા તો 88માં વસંતભાઈ ખેંચી ગયા. વસંતભાઈ કઈ ગઈ તારું ગયા મને અરે બધું એ ક્યાં જવા દો રામથી રામાયણ નથી કહેવા જેવું. આખી રાત જાગેલા બધા મથામણ કરવા. દાદા જાય છે ને પછીની વાત કરું છું. મને લાગે કે સાના બધે અથડાતા હશે. આટલા બધા બચી ગયેલા તો આ રહ્યું બધું. ચંદ્રકાંત બી અમને કે ભાઈ તમને સહજ લાગે તમે સહજ કે મહાત્મા તમે કરો એમ કે સહેલું નથી સહજ કે રસ્તા પડેલું હોય. મને એમ લાગે કેમ આમ રહેતા હશે આવું. આ જ્ઞાન તો સહજ બન્યું છે આપણે. સહજ જ્ઞાન કહેવાય. સહજ જ્ઞાન કહેવાય. સહજ જ્ઞાન મળ્યું હોય ત્યારે જ આપણને સહજ દશા શું છે એ સમજાતું જાય. આપણા જ શરીરથી જીવતા જીવતા એમ ના સમજાય. સહજ પુરુષ સમજ્યું છે ને તો દીકરાની મમ્મી શું તો સમજ નહીં શું કરી. આ સહજ પુરુષ થી નીકળે છે ત્યારે જ સહજ જ્ઞાન આવે છે. આખો માર્ગ જ સહજ છે. બ્રહ્માકુરી કે છે અમે સહજ ધ્યાન કરાવીએ છીએ. હવે ખોટું નથી પણ એ વ્યવહારથી છે. લક્ષ્મીથી જ શોભે વ્યવહાર. ધર્મ વ્યવહારથી ધર્મ શોભવો તો લક્ષ્મી જોઈએ. કારણ કે આ કાળ એવો છે. શું કહ્યું? કાળ એવો છે.
અમે યોગાનુયોગ મનરબા સોનાબેન ના આવે પણ બિપિનભાઈ લેવા આવ્યા મને બહાર જઈશું તો ચાલો ફરી આવીએ આપણે બાગમાં બેસીશું જરા પેલો સયાજી ગાર્ડન છે ને પછી બેસીએ ગ્રાઉન્ડમાં તે આ બે હતા જોડે હવે તમારા પગ હારા થયા હવે એવું છે ચાલો તો તૈયાર થાવ હા ચાલો તો સોનલ તૈયાર થઈ ગઈ ને તે હું ચાલો તો 4 જણ પહેલી વખત નીકળે પછી અમે ગયા ફરતા બિપિનભાઈ આયા છે આ લોકો તે પાંચી પર બેસીને કઈ વાતો કરીએ વાતાવરણ છે સરસ શું એટલે બેન ગયા ત્યારે પેલું મને એમ કે પેલી સીટ સારી છે ઉપર પેલી બેલ વાળું છે બેઠો એટલામાં તો 89-90 વર્ષના કાકા ત્યાં અંદર જઈને પસાર થઈને જતા હતા કાકા મેં કહું સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ પછી મેં કહું તમે ઓળખો છો ગભરાઈ ગયા તો હું કેમ તમને ઓળખું છું ગમી ગયું એકદમ અમે તો સિનિયર અમે આવીએ છીએ ને અમારી સીટ ત્યાં બહાર છે ને બાગડા તે સામસામા 3 ને 6 બાગડા છે તમે બેસીને 1 કલાક 1.5 કલાક બેસીએ નિરાંતે આવા જ 80 ઉપર 75 ઉપર અમારી એમ તો આજ આવું સરસ છે ને બે છોકરા છોકરીને બેઠા હતા કોર્ટમાં એને પૂછીને જ બેઠા હતા અંદર એટલા પોતે પોતાને એકબીજાના ખાસ ફ્રેન્ડ બેસી વાંધો નહીં પણ અમે બેઠા એવી રીતે જાણે એ બધું જોતા હતા વાતો ચાલી કાકા આયા પછી કાકા આ સીટ ખૂટી જાય તો બધા સવારમાં અમે આવીએ જ વોક કરવા ત્યારે સિનિયર સિટીઝનો લાફિંગ ક્લબ કાઢીશ ત્યાં અને પછી બધું પૂરું થાય ને તો કોઈ દર નાસ્તો નાતે લાવ્યો હોય ને એ બધા સિનિયરો અહીંયા બે સવાર તો કોઈ આવ્યું ના ને એટલું વહેલું તો આ 6 વાગ્યાની 6:30 ની વાત એટલે મને ખ્યાલ કે એ બધા બેસે છે મને કે બેસાશે કાકા કે અરે આ તો લવસી છે તમારી જોડે આવું આવી આવે ચાલો ચાલો પણ અમને બેસવાની જગ્યા બધા આયા પછી એ બેઠા અમે બેઠા હતા 2 3 4 5 6 આયા એક જૈનભાઈ આવ્યા અને મારી જોડે એક બીજો અહીંયા બેઠા હતા એ જોડે બેઠા હું અહીંયા બિપિનભાઈ અહીંયા સામે અમારા બહાર નહીં જાય મેં કહું કાકા જોડે તે વાટલા દેવું અહીંયા આવો જગ્યા છે તે આપણે ઓળખવા જેવા છે 90 વર્ષ નાખે સામાન મળ્યા તે એમ એમને દાદાજી તરીકે ઓળખાય છે પછી બરોબર છે પછી એમને તમે દાદાજી છો દાદા છો નિર્મલ બાબા કોઈ દાદો નથી ભગવાન પવિત્ર શબ્દ કેવી રીતે ચાલી બહુ સમજવા રહસ્ય ખુલ્લા થયા દાદા ભગવાનથી અને આપણે આ શરીરથી જીવવાનું કે કઈ કોઈના હાથે કોઈ જીવે છે સાચું કહી દો ના સાચું કહો ને ઘરમાં જોડે ને જોડે રહે રાત દાડો તું તું પ્રકાશ માટે નથી જીવતી અરે બોલ ને સાચું કે નથી જીવતી જીવું છું પણ વ્યવહારથી વાત સાચી છે બધા જ પોતપોતા રસપરસ સમજી ગયા છે કેટલું સુંદર જ્ઞાન છે આ સહજ નહીં તો બીજું શું સહજ નહીં બીજું શું
હવે આની જોડે પહેલા તમે જીવતા હતા અને પછીનું કેવું કેટલો ફેર પડ્યો? ઘણો દાદા, નહીં તો અમે હોત જ નહીં જોડે. તો સાચી વાત કહું. દાદાએ આ રીતે જ અમને બધાને બચાવ્યા અને તમે આ એને પોષણ ઘણું આપ્યું. તરુણને પૂછો ને, પેલી હેમા છે, મુકુલ છે, મેં કહું, આ તમને બધા આવવા દે છે ને ગમે તેમ ફરવા દે છે તો બહુ પુનસારી છો. કોઈ ના કે જવાનું નથી આમ તેમ કીધું કે કેટલા પુનસારી છો. હવે કહું આ વાત છે. એટલે સહજ શબ્દ સમજવો એટલો સહેલો નથી, પણ જેને જીવાય છે એ તો જાણે છે. ગુલાબ છે તો ગુલાબ તરીકે આખું વિકસે છે, તો ગુલાબને પોતાને જાણવું નથી પડતું હું ગુલાબ છું, કારણ કે તો કુદરતીપણે ફ્લાવર છે. જો આ પૌધામાંથી આ ફ્લાવર આવે તેને આટલું છે, તો માણસ જેવા માણસ હોય તો બીજ પડે છે ખોદે. આ વાત છે, બહુ સમજવા જેવી વાતો છે. અમારે તો આ દેશ જોડે હું તો નથી કહેતો 50 વર્ષથી આજે 51 વર્ષ ચાલે છે એની જોડે બહુ જ રહ્યો છે. કયા કયા સિચ્યુએશન ક્યાંથી પસાર થયો, અને આજે અમારો પ્રતિક્રમણ વગર સમય નથી જતો. મારે કરવું નથી પડતું, ચાલે પેરેલલ ચાલ્યા જ કરે છે. લોકોને સમજાવીએ કે પ્રતિક્રમણ આજ્ઞાને અનુ છે, પણ કેમનું સમજણ પડે? શરીર પોતાનું છે, આટલું જોડે જોડે ચીટકાયેલું આપણે ચીટકેલું રાખીને જીવીએ છીએ. તો પેલી મલ્લિકા કંઈક મને આમ જ નહીં પડતી, કોણી નથી પડતી, હવે પડવા લાગે. ખડાટ જ થયા. મને તો મળતું નથી, મને રેસ્ટ મળી ગયો. મારો રેસ્ટ એનો વાંધો નહીં. તો સહજ આ બધું કેવું છે કે મારો ખોરાક હતો પણ આપણે બોલાય નહીં, કારણ કે પાછા દાદાને નકલ કરવા. દાદાએ કહું છું મારી તો કરજો ખાસ. દાદાએ કહ્યું પોતે જ નથી કહ્યું કહ્યું છે ને કેટલે બધું. પણ આત્માને શરીર આમ ચીટકીને જ કેમ ફરવું પડે છે ને આત્માને આટલો બધો શુદ્ધ છે એટલા માટે કે આપણે વ્યવહાર જોડે જેટલા ચીટકીને ફરેલા ને એ વ્યવહાર ચીટકેલો આપણી જોડે છે. એટલા માટે શરીર આપણી જોડે છે, એ ચીટકેલા વ્યવહારથી આપણી જોડે છે. નહીં તો શરીરના અને આત્માને કનેક્શન જ નથી કોઈ જાતનું બેની વચ્ચે. પણ આ ચીટકેલો ભાગ જેને તેઓનો સ્વભાવ કહીએ છીએ તેની વાત કરું છું. એક સ્વભાવ શબ્દ બહુ સાદો છે, બીજું કશું જ નથી. તે દરેકે પોતે પોતાનો સ્વભાવ સમજવો જ પડશે. ક્યાં જશું? કોણ સમજાવવાનું? એકબીજા સમજાવવા જાય? અનુભવ હોય તે કોઈ એ શું છે? સમજણ એમનાથી પ્રાપ્ત થાય છે, આપવા નથી જતા કોઈ. આપવાની ક્રિયા હોય એટલે બધું બંધ થઈ જાય દરવાજા. એવું છે. એટલે જ્ઞાની પુરુષ દાદા એટલે જ કહ્યું, જ્ઞાની પુરુષ સમજણ આપી શકે છે, અને સમજણ જ આપે, બીજું કશું કરતા નથી. એમની પાસે કોઈ ક્રિયા નથી શરીરની કે પૂતગલની, સમજણ આપે છે. એટલે એમની અનુભવ પ્રમાણ છે. અનુભવ પ્રમાણ શરીર છે, એટલે શરીર સાથે એ વ્યવહારથી જાય જ બધું. શું કહ્યું? કારણ કે નિશ્ચય વાણીમાં આવી શકતો નથી. શું કહ્યું? એ શબ્દાતીત છે, એટલે અનુભવને શબ્દાતીત કહ્યું. પોતાનો સ્વાદ શુદ્ધાત્માનો અને શરીર જોડે જોડે છે. અસલ બે સ્વભાવની જ થાય છે. પેલું એટલે સહજ કરી. જેમ જેમ સ્વભાવ અગરતો જશે એ સ્થૂળમાંથી સૂક્ષ્મ જવું પડશે. બસ એટલું જ કરી શકે મહાત્મા, વધારે ના કરી શકાય. બહુ પરાક્રમ કરવું હોય ત્યારે સૂક્ષ્મના કારણની વાત આવે છે. તો પેલું તો સ્થૂળમાંથી સૂક્ષ્મ જવું બહુ ભારે છે. આ વ્યવહારથી અભિમન્યુના કુઠા આમ જાય પણ જુદી રીતમાં છે. એ બહુ સ્થૂળ વ્યવહાર છે બધું. નહીં સમજે? પેલો કુઠો કયો સમજાયો છે અભિમન્યુનો? નાનો કેવું પેલું પછી ઓછી સોફ્ટ ધાતુ આવે છે.
પછી નક્કુર ધાતુ આવે, પછી સોફ્ટ આવે, પછી લોનું ચાંદી આવું બધું આવે કોઠા. અને છેલ્લો કોઠો માટીનો આવે. તો માટી એને જ પૂતગલનો કોઠો કે આખો, એટલે ગ્રોસ પૂતગલ કહું છું હું તો, ગ્રોસ કહું છું. દાદાજી ડોક્ટર એમ? આવો તારે જરાક જરા સાઈડ આપશો બેન. હા? સત્સંગ છે દાદાજી 9 વાગે ઉપર. બસ એ વગર તો તમયંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આર્યાણમ નમો વજ્જાયાણમ નમો લોહી સવ સાઉનમ એસો પંચનમુક્કારો સર્વપાવપણાસણમ મંગલાણમ ચ સવેસી પરમં હવૈ મંગલમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમઃ શિવાય જય સચ્ચિદાનંદ. અમને પૂતગલ અમને આ લોકો હમણાં જ કહ્યું મેં કે ડ્રેનેજની ગટરો મારે નજર અમે ઉગાડી છે બધી, પણ આ લોકો વ્યવહારથી ટાંકવી પડે બધી. ખુલ્લી ગટરના ઢાંકણા ખુલ્લા રાખે છે કોઈ? આવું છે. મને તો બધું દેખાય, સમજ્યું? બધું દેખાય. આ લે ને તે બધું એનું ગલન મને ખબર પડી જાય. નામ છે પાણી પીએ તરત ખબર પડી જાય. ચાલો જાઓ જાઓ બધા.